So, a very good morning to all of you. And as we discussed a very important topic yesterday, we'll continue with our discussion of anticholinergic drugs. Anticholinergic drugs are also known as parasympatholytic drugs. So, these block the action of acetylcholine and block the autonomic effectors in the CNS through the muscarinic receptors. See, when you are studying autonomic nervous system, you have to keep in mind that we are dealing with two major neurotransmitters, that are acetylcholine and noradrenaline, and the parasympathetic nervous system deals with those areas where acetylcholine is the major neurotransmitter in the preganglionic as well as the postganglionic part, and parasympatholytics are those drugs that are against the action of acetylcholine. They block the action of acetylcholine and they lock the autonomic effectors in the central nervous system via the muscarinic receptors. And all anticholinergics are competitive antagonists. We have seen competitive antagonist definition in Introduction to General Pharmacology, so we will not go into much detail. So the classification is like, what are the natural alkaloids and what are the semi-synthetic derivatives. In natural alkaloids, we have got atropine and hyoscine or scopolamine, while in semi-synthetic derivatives, we have homoatropine, atropine, methonitrate, hyoscine butyl bromide, ipratropium and tiotropium bromide. These are the molecules which have been derived from the atropine molecule and later modified into semi-synthetic formulations for mass production. See, any chemical entity which has been derived from nature, if you are deriving it from nature only, then there would always be a limitation of the raw material. Like Atropa belladonna is required for production of atropine, but Atropa belladonna is in limited amount. But if you go on to form a semi-synthetic derivative of that molecule, you understand the structural and functional characteristics of that molecule, you can mass produce this molecule as per the requirement of the general population. And that was the time when homoatropine, atropine, methonitrate and hyoscine butyl bromide were formed. Now coming on to the next part, that is synthetic components. They can be classified on the basis of the use also, like mydriatrics. Mydriatrics are drugs which increase the size of the pupil, like cyclopentolate, tropicamide. There are drugs which are anti-secretory, like they are also acting as anti-spasmodic. Last year, there was a question in Kolan University which asked the classification of the drugs which are acting as anti-secretory or anti-spasmodic. And one question came that was a very short answer question of just 2 marks, where they asked that how dicyclomine can be used as an anti-spasmodic and what is the rationale of use of dicyclomine. So in this there are quaternary compounds and tertiary amines. In example of quaternary compounds, we have got propanthelene, oxyphenonium, psyllidium, pipentholate, methyl bromide, isopropamide, glycopyrrolate. See, these molecules come under quaternary compound, while there are some tertiary amines like dicyclomine, pyrenzapine, telenzapine. And we have got the use of these drug in Parkinson's also. Parkinson's disease, you all must be knowing that it is a disease characterized by tremors, rigidity, akinesia and bradykinesia, and postural instability is also there. So trap syndrome is associated with Parkinson's. So anti-Parkinsonian drugs are trihexyphenidyl, procyclidine, biperidine and benztropine. What are the pharmacological action of these drugs? In central nervous system, we see that these are acting as CNS stimulant drugs. Atropine stimulates the medullary centers, that is the vagal, respiratory and vasomotor centers, but it depresses the vestibular excitation and has anti-motion sickness property. And that was the reason mainly this molecule was being used for sea journeys. In previous times, when people used to go for sea, it was known as sea sickness, because there was a constant movement in the ship due to the waves, and the people used to use this drug in the raw form or crude form to prevent sea sickness or motion sickness. But obviously, because the drug was in the very crude form, these molecules used to cause more of the adverse effect which are not present in the newer generation molecules.
So these block the relative cholinergic overactivity in the basal ganglia and suppresses the tremors and rigidity associated with Parkinsonism. While in high doses, it can cause cortical excitation, restlessness, and disorientation, hallucination, delirium, followed by respiratory depression, and finally it can lead to death or coma. So these drugs are very dangerous drugs. If used in high doses, they can also cause the death of the recipient. So in cardiovascular system, we see that in heart, it causes the blockade of M2 receptors on the sinoatrial node, which causes the increase in heart rate. See, the muscarinic receptors are present in the heart, which is M2. And if you block these receptors, then the heart rate will increase, while the agonists to these receptors decrease the heart rate. So heart rate would be increased. Atropine also abbreviates the रिपोलराइजेशन रिस्पॉन्स पोटेंशियल ऑफ एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, जिससे कारण रिपोलराइजेशन क्या हो जाता है, जल्दी होने लगता है एंड फैसिलिटेट्स द एट्रोवेंट्रिकुलर कंडक्शन. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पीआर इंटरवल होगा वो छोटा हो जाएगा और हार्ट रेट और इंक्रीज कर जाएगा. ब्लड प्रेशर का अगर बात करें तो कॉलिनर्जिक इंपल्सेस आर नॉट इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ द वैस्कुलर टोन, जिसके कारण इफेक्ट ऑन बीपी नहीं होता है. तो एट्रोपिन देने से हार्ट रेट तो बहुत अच्छा इंक्रीज करता है, बट ब्लड प्रेशर पे हम लोगों को कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है. इसीलिए जो साइनस ब्रैडिकार्डिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत बार एट्रोपिन दे दिया जाता है हार्ट रेट बढ़ाने के लिए. आई में अगर इसका हम लोग रोल देखेंगे तो टॉपिकल इंस्टिलेशन कैन कॉज मिड्रियासिस एंड एबोलिशन ऑफ द लाइट रिफ्लेक्स and cycloplegia, which can last up to 7 to 10 days, and it can lead to the increase in the intraocular pressure. तो मिड्रियासिस कराएगा, हमेशा प्यूपिल का साइज जो है बड़ा हो जाएगा और लाइट रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा. तो शुरुआत में इसका यूज किया गया आगे फंडस का एग्जामिनेशन करने के लिए, so that more light can enter the eye and eye can be visualized in the fundus also. but देखा गया कि ये साइक्लोप्लेजिया इसका जो है 7 से 10 दिन रह जाता है, जिसके कारण ये बहुत पेनफुल हो जाता है. पेशेंट्स को लाइट रिफ्लेक्स जो है बनता नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट आँख के अंदर जाता है, तो देखने में बहुत दिक्कत होने लगता है. इस वजह से इसका बाद में यूज़ कम कर दिया गया और उसके अदर कॉन्जीनर्स लाइक होमेट्रोपिन और ट्रोपिकामाइड ये सबको फिर जो है लाया गया, जो कि यूज़ किया जाने लगा इन सब चीज़ों के लिए. स्मूथ मसल्स में क्या इफेक्ट रहेगा, रिलैक्स्ड बाई एट्रोपिन M2 ब्लॉकेट के कारण. टोन और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टमक और इंटेस्टाइन में डिक्रीज कर जाएगा एंड दे कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो. ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा, रिड्यूसेस एयरवे रेसिस्टेंस, दे रिलैक्स द यूरेटर एंड द यूरिनरी ब्लैडर. ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो दे डिक्रीज द स्वेटिंग, सलाइवरी ग्लैंड्स का सेक्रीशन घटाएगा, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगा. ट्रैकियोब्रोंकियल और रैक्रीमल सेक्रीशन भी घट जाता है M3 ब्लॉकेट के कारण. स्किन और आईज बिकम ड्राई and decrease the secretion of the acid, pepsin and mucus in the stomach. तो एंटी गैस्ट्राइटिस मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली कोई भी मेडिसिन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह के लिए यूज़ करते हैं और वो अगर सेलेक्टिव नहीं है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो उसके अदर एडवर्स इफेक्ट्स भी आएंगे. लाइक मान लो अगर आप ये मॉलिक्यूल चाहोगे कि हम इसको यूज़ करते हैं, पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है जिसको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो रखा है, तो बहुत अच्छी बात है, वो क्या करेगा, उसका एसिड सेक्रीशन को तो घटाएगा, मगर साथ ही साथ क्या करेगा, वो ड्राइनेस ऑफ माउथ भी करा देगा, ट्रेकिया का सेक्रीशन भी ड्राई हो जाएगा, स्किन और आईज भी ड्राई होने लगेगा. दैट इज वाई मॉलिक्यूल, जो भी रिफाइंड मॉलिक्यूल्स होता है उसमें सिलेक्टिविटी फॉर द प्लेस ऑफ यूज होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं होगा, नॉन सिलेक्टिव होगा, तो फिर उसका एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा. लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी ये काम करता है. इट हैज़ गॉट माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन ऑन द कॉर्निया. Obviously it increases the body temperature and at higher dose due to inhibition of sweating as well as stimulation of the temperature regulating center. ठीक है ना. तो ब्लड ये बॉडी का टेम्परेचर को भी बढ़ाता है एट्रोपिन. जैसे आप एट्रोपिन का एग्जांपल बार बार मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इट इज द बेस मॉलिक्यूल जिससे कि ये पूरा ग्रुप का अदर मॉलिक्यूल्स को डिराइव किया गया है. तो अगर उसका फंक्शन, एट्रोपिन का फंक्शन आप अच्छे से समझोगे तो आप इस ग्रुप के बाकी मॉलिक्यूल्स को भी अच्छे से समझ सकते हो. और फिर ओपी पॉइजनिंग में जब हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में, एट्रोपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. तो एट्रोपिन को ही हम लोग यूज करते हैं. फिर एट्रोपिनाइजेशन जब हो जाता है तो एट्रोपिनाइजेशन का कुछ कुछ साइंस होता है कि पेशेंट एट्रोपिनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है. तो उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं. जब हम लोग पेशेंट को लाइट मार करके देखेंगे तो प्यूपिल्स उसका डायलेटेड रहेगा,
उसके बाद उसका स्किन पूरा ड्राई रहेगा, सेक्रीशंस पूरा बंद हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम लोग का बेस लाइन होता है कि हार्ट रेट को कम से कम 110 120 तक कर देना है, तो टैकीकार्डिया होने लगेगा पेशेंट्स को, मिनिमम 100 के ऊपर हार्ट रेट को रखना है, मतलब ब्रैडीकार्डिया पूरा खत्म हो जाएगा। सेम बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है पेशेंट का, और जो सेक्रीशंस है वो पूरे ड्राई हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब देखने को मिलती है तो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि माई पेशेंट इज़ एट्रोपिनाइज्ड, ठीक है ना, माई पेशेंट इज़ एट्रोपिनाइज्ड। और अब जो है एट्रोपिन का पूरा फुल इफेक्ट आ गया है, और उस हिसाब से फिर हम लोग उसको कंटिन्यूएशन डोज में देते चले जाते हैं। तो जब ट्रीटमेंट होता है तो 2 फेज में होता है, एक होता है लोडिंग डोज और एक होता है कंटिन्यूएशन डोज, या मेंटेनेंस डोज भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग जब लोडिंग देते जाते हैं तो कंटिन्यू देते हैं और मान लो कि जितना लोडिंग डोज आया फिर उसी को ओवर 6 आवर्स मेंटेनेंस डोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिस दिन हम लोग ओपी पॉइजनिंग देखेंगे उसका हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या डोजिंग होता है, किस तरह से उसको एट्रोपिनाइज करना है पेशेंट को। क्वाटरनरी कंपाउंड का कॉमन फीचर्स अगर हम लोग देखें तो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, ओरली डू नॉट पेनिट्रेट द ब्रेन एंड आई, and elimination is slower, longer acting and have higher nicotinic properties. ड्रग्स का अगर बात करोगे तो हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोस्ट कॉमनली यूज, आज तक ये मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। इट कैन बी यूज 20 to 40 मिलीग्राम ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्रावीनस। इट इज ऑब्वियसली लेस पोटेंट एंड longer acting than atropine and used for esophageal and gastrointestinal spastic conditions. एट्रोपिन का अगर बात करें, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट 2.5 to 10 मिलीग्राम ओरल यूज किया जाता है, और इंट्रामस्कुलर भी इसको हम लोग यूज करते हैं। तो यूज मोस्ट कॉमनली इन एब्डोमिनल कॉलिक्स एंड हाइपर एसिडिटी। एरोसॉल फॉर्म में ब्रोंकियल अस्थमा के लिए यूज किया जा सकता है, बट अब इससे अच्छे कॉन्जीनर्स लाइक हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एट्रोपिन मेथोनाइट्रेट से अच्छे कॉन्जीनर्स लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आ गए हैं, जिनको कि आप नेबुलाइजेशन के फॉर्म में आप लंग्स में डिलीवरी दे सकते हैं। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड पे आते हैं तो 40 to 80 माइक्रोग्राम बाय इनहेलेशन, सेलेक्टिव टू ब्रोंकियल मसल्स विदाउट अल्टरिंग द वॉल्यूम और कंसिस्टेंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी सेक्रीशन। तो कितना अच्छा चीज है ना ये, कि मतलब तुम्हारा रेस्पिरेटरी मसल्स पे एक्ट करके डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेशन करा देगा, जबकि सेक्रीशंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। डज नॉट डिप्रेसेस द म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस बाय द ब्रोंकियल एपिथेलियम। तो जो भी सीलिया फंक्शन है उसको डैमेज नहीं कर रहा है, जिसके कारण म्यूकस का क्लियरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एन इफेक्ट इज ग्रेजुअल ऑनसेट, लेट पीक ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट, एंड इट इज suitable for prophylactic use. And action lasts for 4 to 6 hours. It acts on the receptors located mainly in the larger central airways and more effective in COPD than in bronchial asthma. So dryness of mouth major side effect इसका है ना, स्क्रेचिंग इन ट्रेकिया, स्क्रेचिंग सेंसेशन फील होता है, कफ एंड बैड टेस्ट एंड नर्वसनेस भी फील हो सकता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के कारण। इसीलिए बच्चों में इसका यूज हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, और ओल्ड एज में ही सीओपीडी जो है ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, तो इसलिए सीओपीडी में ज़्यादा यूज होता है। अस्थमा में हम लोग जनरली बीटा रिसेप्टर्स पे काम करने वाले बीटा एगोनिस्ट जो होते हैं, बीटा सिंपैथोमाइमेटिक्स जिसको भी बोल सकते हैं, तो उनको हम लोग यूज करते हैं सो दैट द ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स और ब्रोंकोडाइलेशन मिल जाए और सांस लेने में आराम हो जाए। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड ज़्यादातर सीओपीडी के पेशेंट्स में यूज होता है। COPD stands for chronic obstructive pulmonary disease. So recently developed congener of ipratropium bromide, longer lasting होता है bronchodilation इसका, and high bronchial selectivity action होता है इसका। तो प्रोपेंथिलीन का अगर हम लोग बात करें तो it is 15 to 30 milligram oral, most popular anticholinergic used for peptic ulcer and gastritis. It delays the gastric emptying also. ऑक्सीफेनोनियम 5 to 10 मिलीग्राम ओरल डोज है, रिकमेंडेड फॉर पेप्टिक अल्सर। सिलनेडियम भी हम लोग यूज करते हैं, 2.5 to 5 मिलीग्राम ओरल यूज होता है, एंड इन कम्बिनेशन विद बेंजोडाइजेपिन्स फॉर नर्वस डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल कॉलन एंड पेप्टिक अल्सर्स। तो एक प्रॉपर कंडीशन होता है जिसको हम लोग IBD बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग इरिटेबल बाउल डिजीज बोलते हैं। तो इरिटेबल बाउल डिजीज में क्या होता है कि पेशेंट का जो गट है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब अगर थोड़ा भी ऐसा कोई फूड उसने कंज्यूम कर लिया जो उसको डिस्पेप्सिया करा रहा है तो पेशेंट को डायरिया हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है, ठीक है ना,
या ऑल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। तो डायरिया ऑल्टरनेटिंग विथ कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बार आईबीडी के पेशेंट्स में देखा जाता है। तो ये आईबीडी इरिटेबल बाउल डिजीज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से अलग है। आईबीडी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में नहीं कंफ्यूज करना है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। तो इरिटेबल बाउल डिजीज टोटली डिफरेंट। आजकल इरिटेबल बाउल डिजीज का केसेस बढ़ने का मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो हम लोगों का एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो अंडर इन्फ्लुएंस आ जाता है बहुत बार। और तुमने देखा भी होगा बहुत बार लोगों को जिस टाइम में एग्जाम होना है उस टाइम में उनको डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रेस कैन ऑल्सो लीड टू द डिस्टर्बेंस ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सो सिलेडियम को हम लोग बेंजोडाइजिपीन्स के साथ कंबाइन करके नर्वस डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल कोलन में भी यूज कर सकते हैं। ग्लाइकोपाइरुलेट का बात करें तो इन वेरी स्मॉल डोजेस 0.2 to 3.3 मिलीग्राम IM या 1 to 2 milligram oral, it can be used. It is a potent and rapidly acting antimuscarinic lacking the central effects. टर्शियरी अमीन्स का भी हम लोग यूज करते हैं। डाइसाइक्लोमीन एक कॉमन एग्जांपल है। 20 मिलीग्राम तक ओरल देते हैं और इट इज अ डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इन एडिशन टू वीक एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, जिसके कारण इसका बहुत बढ़िया एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन देखने को मिलता है। पेट में एब्डोमिनल क्रैम्प्स अगर कोई पेशेंट को आ रहा है, पेशेंट आता है बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है और ममोड़ दे करके दर्द हो रहा है, कॉमन वर्ड एक है जो कॉमन तुमको ओपीडी में सुनने को मिलेगा। तो ममोड़ दे के अगर दर्द हो रहा है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन दिखाता है डाइसाइक्लोमीन। इट आल्सो हैज सम एंटी इमिटिक प्रॉपर्टीज, मतलब वॉमिटिंग को भी रोकेगा। एंड हेंस इट इज यूज्ड इन मॉर्निंग सिकनेस एंड मोशन सिकनेस, है ना। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन डिस्मेनोरिया एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो डिस्मेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो मेनोरिया करके तुमको बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज आएगा, जैसे डिस्मेनोरिया आएगा, एमरिया आएगा, मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मेनोरहेजिया आएगा, मतलब कि बहुत अनकंट्रोल्ड और एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो डिस वर्ड जो है तुम्हारा किसके लिए यूज होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए। तो ये दो जगह इसका मेन यूज है, डिस्मेनोरिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसी तरह से ऑक्सीब्यूटाइनिन, इट इज अ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड एंटीमस्करेनिक, हैज हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर्स एंड सलाइवरी ग्लैंड, जिसके कारण क्योंकि ये सिलेक्टिव है, रिलेटिवली सेलेक्टेबल फॉर M1 एंड M3, M2 पे काम नहीं कर रहा है। सो इट इज यूज्ड फॉर डेट्रूसर इंस्टेबिलिटी, बेनिफिशियल इफेक्ट है इसका न्यूरोजेनिक ब्लैडर के केसेस में, स्पाइना बाइफिडा एंड नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस के केस में। जब बच्चा क्या होता है बहुत बार बेड वेटिंग करने लगता है, खास करके जब उसका एज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उस टाइम में ये मॉलिक्यूल को हम लोग यूज कर सकते हैं। पायरेनजिपिन का बात करें तो 100 to 150 मिलीग्राम पर डे इसका ओरल डोज होता है। इट इज अ पोटेंट M1 ब्लॉकर, इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सेक्रीशन। ड्रोटावेरिन बहुत कॉमनली यूज ड्रग है ओपीडी बेसिस पे, इट हैज गॉट वेरी कॉमन यूज, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को अच्छा से जानना है हम लोगों को। इट इज अ नोवेल, दैट इज अ न्यू नॉन एंटीकोलिनर्जिक स्मूथ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग and it inhibits the phosphodiesterase 4 enzyme. It is used orally as well as parenterally. 40 मिलीग्राम इसका इनिशियल डोजिंग होता है, 80 मिलीग्राम तक भी हम लोग इसको लेके जा सकते हैं। जनरली यूज्ड फॉर इंटेस्टिनल, बिलियरी एंड रीनल कोलिक्स, है ना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, यूट्राइन स्पाज्म में भी ड्रोटावेरिन को यूज किया जा सकता है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसका है हेडेक, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लशिंग। कभी कभार आईवी, डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन इंट्रावीनस अगर तुम दोगे तो इट कैन रीच टू वैसोडाइलेशन एंड इट कैन लीड टू डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जिसके कारण पेशेंट को गिडीनेस भी हो सकता है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो इसीलिए ये अगर आप दे रहे हो, ऐसा कुछ होता है तो पेशेंट को लाई डाउन करना है रिक्लाइनिंग पोजीशन में, और लाई डाउन करके उसका हेड एंड क्या करना है, आपको हेड एंड जो है लाई डाउन करना है और लेग जो है उसका एलिवेट करा देना है। तो लेग एलिवेट हो जाएगा तो पेशेंट का क्या होगा कि जो ब्लड है वो लेग से नीचे आके हेड की तरफ जा पाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, चैनल लगा करके पेशेंट को फ्लूइड बोलस दे देना है। मिड्रियाट्रिक्स का अगर बात करें तो एट्रोपिन इज अ पोटेंट मिड्रियाट्रिक, स्लो एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक्शन, इज अनडिजायरेबल फॉर रिफ्रैक्शन। देखो इसलिए क्योंकि बहुत देर तक इसका इफेक्ट रह जाता है,
प्यूपिल डायलेट कर जाता है तुरंत 30 to 40 मिनट्स में, बहुत अच्छा बात है, हम लोग आराम से फंडस एग्जामिनेशन कर पाएंगे। देखो कोई भी चीज अगर तुमको पीछे देखना है, आंख में जैसे तुम सामने से देख रहे हो, तो सबसे सामने में तुम्हारा क्या आएगा, कंजंक्टिवा आएगा, कॉर्निया आएगा, उसके बाद फिर तुम जाओगे तो पीछे आगे तुमको क्या मिलेगा, एक्वस ह्यूमर मिलेगा, उसके बाद लेंस मिलेगा, फिर विट्रस ह्यूमर मिलेगा, फिर क्या है, पीछे फंडस है ना, जो एक तरह का स्क्रीन है, समझ लो रेटिना जो है। तो अगर मान लो रेटिना देखना है हमको, विजुलाइज करना है, मान लो एक पेशेंट है, उसको बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहा है और अब हम देखना चाहते हैं कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमको अगर पीछे देखना है तो सामने प्यूपिल डायलेटेड रहेगा, तभी ना हम पीछे देख पाएंगे। तो ये प्यूपिल को डायलेट करने के लिए ये सारे मॉलिक्यूल्स का यूज किया जाता है। बट मान लो प्यूपिल अगर तुम्हारा डायलेट हुआ, तुमने अपना देख लिया जो देखना था, बट उसके बाद ये बहुत देर तक डायलेटेड रह गया, तो फिर तो ये बहुत पेशेंट के लिए पेनफुल हो जाएगा ना, उसका तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। तो साइक्लोप्लेजिया जो है 1 से 3 घंटा में आता है, और पेशेंट क्या हो रहा था, विजुअली हैंडिकैप्ड फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो ऐसा ट्रीटमेंट कोई कराना चाहेगा कि जिसमें वो हफ्ता भर तक फिर आगे कुछ ना कर पाए, है ना। तो उस वजह से हम लोग न्यूअर मॉलिक्यूल्स लाए, लाइक होमेट्रोपिन विच वाज 10 टाइम्स लेस पोटेंट देन एट्रोपिन, है ना। एक्ट करता है घंटा भर के अंदर, मिडरेसिस लास्ट फॉर 1 to 3 days एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स रिकवर्स इन 1 to 2 days। इसीलिए आज इसका यूज क्या होने लगा, बेटर ज्यादा होने लगा। सो यूज्ड इन अडल्ट्स, प्रोड्यूसेस अनसैटिस्फैक्टरी साइक्लोप्लेजिया इन चिल्ड्रन हु हैव हाई सिलियरी मसल टोन। साइक्लोपेंटालोट का अगर बात करें तो साइक्लोपेंटालोट जो है, इट इज अ पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग ड्रग। मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया 30 to 60 मिनट में आता है एंड द एक्शन लास्ट फॉर अ डे। तो बहुत अच्छा है, एक दिन का छुट्टी कोई भी ले सकता है, दूसरे दिन फिर वो अपना वर्क पे जाने के लिए रेडी रहेगा। इट इज अ प्रिफर्ड फॉर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, ऑल्सो यूज्ड फॉर आइराइटिस एंड यूवियाइटिस। ट्रॉपिकामाइड का अगर बात करें तो इट हैज गॉट क्विकेस्ट एक्शन, 20 to 40 मिनट होता है, briefest 3 to 6 hours action, but the cycloplegic action is unreliable for tropicamide and satisfactory for refraction testing in adults as a short acting mydriatric for फंडोस्कोपी। अभी बताया मैंने तुमको फंडोस्कोपी कैसे करते हैं, सामने से लेंस लगा करके बैठ के, जो आई वाला मिरर होता है उससे हम लोग पूरा देखते हैं और पीछे एग्जामिन करते हैं फंडस को, रेटिना को, देखते हैं कि कोई डैमेजिंग वेसल्स या कुछ डैमेज तो नहीं है पीछे। तो उसके लिए प्यूपिल डायलेशन चाहिए और इन सब मॉलिक्यूल से हम लोग उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। तो अगर तुमको ड्रग ऑफ चॉइस अगर कोई पूछ दे कि कौन सा ड्रग अभी सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो ट्रॉपिकामाइड बोलना है, बिकॉज एक्शन बहुत फास्ट आता है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है इसका यूज़। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा यूज़ हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग डिस्कशन देख लिया है। यूज, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी सेक्रेटरी, है ना। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम लोग देंगे, जैसे मान लो कोई पेशेंट का कोई सर्जरी है, तो सर्जरी से पहले तुम पेशेंट को चाहोगे ना कि पेशेंट को कोई ज़्यादा सेक्रीशन नहीं आए, क्योंकि सेक्रीशन को तुमको ड्राई करके रखना होगा। अगर सेक्रीशन बहुत ज़्यादा आएगा तो पेशेंट क्या हो सकता है, एस्पिरेट कर सकता है। इसीलिए एंटी सेक्रेटरी के लिए भी इसको हम लोग प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज़ करते हैं। उसी तरह से पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी हम लोगों को एसिड को क्या करना है, घटाना है। डिक्रीज एसिड रहेगा तो पेशेंट का पेप्टिक अल्सर का रिकवरी क्या होगा, फास्ट होगा। It can also be used in pulmonary embolism to check excessive sweating and for excessive salivation। तो एंटी सेक्रेटरी जैसा काम करता है, हर जगह का सेक्रीशन को क्या करेगा, ड्राई करेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एंटी स्पाज्मोडिक, इंटेस्टिनल एंड रीनल कोलिक, नर्वस एंड ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, फंक्शनल डायरिया, है ना, स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है, इरिटेबल कूलॉन, पाइलोरोस्पाज्म, ये सब जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक हाइपरमोटिलिटी, गैस्ट्राइटिस एंड टू रिलीव द यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी। तो इन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन भी देखने को मिलता है ना। और डिस्मेनरिया, दैट इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ड्रॉटिन एज अ मॉलिक्यूल, इसका यूज बहुत ज्यादा होना शुरू हुआ डिस्मेनरिया में। ब्रोंकियल अस्थमा में, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस में, सीओपीडी में इसका यूज हो रहा है। और इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ मिडियाट्रिक एंड साइक्लोप्लेजिक। इट कैन बी ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कार्डियक वेगोलाइटिक। पार्किंसंस में भी इसका यूज देखने को मिला बिकॉज ऑफ सेंट्रल एक्शन, और मोशन सिकनेस में भी इसको यूज करते हैं हम लोग। तो इसका यूज जो है ना, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस, वो बहुत कॉमनली आज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स हम लोग से पूछते हैं कि इसमें कितना लिख सकते हैं, तो इसमें आप कम से कम, तो तुम देख रहे हो जो मिनिमम तुम्हारा की
बुलेट्स पॉइंट्स है ना, वो बुलेट पॉइंट्स तो तुमको मेंशन करना ही पड़ेगा। और अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे वो सिर्फ ये लिख करके छोड़ देते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी स्पाज्मोडिक, ठीक है ना। तो सिर्फ एंटी स्पाज्मोडिक लिख देने से काम नहीं चलेगा। एज एन एंटी स्पाज्मोडिक कौन सा पर्टिकुलर कंडीशंस में, जैसे किसी को किडनी स्टोन हो रखा है तो वहां पे रीनल कोलिक हो रहा है पेशेंट को, है ना। अगर किसी को मान लो कि इंटेस्टिनल क्रैम्प्स आ रहा है तो वहां पे वो इंटेस्टिनल कोलिक बन जाएगा। तो वो प्रॉपर तुमको मेंशन करना पड़ेगा दैट इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटी स्पाज्मोडिक इन इंटेस्टिनल एंड रीनल कोलिक। उसी तरह से अब इस मेन हेडिंग के अंदर बहुत सारा फिर तुमको बुलेट पॉइंट्स रेस करना है, लाइक इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्मेनोरिया, फॉर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, फॉर इन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप बता देते हो तो इट मेक्स योर आंसर कंप्लीट। तो ये सारा यूजेस है, सेंट्रल एक्शन भी है इसका बहुत अच्छा। पार्किंसंस मोशन सिकनेस में आज भी हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, हायोसी मैक्स नाम से भी आता है। और इसका ना पैचेस भी आता है, जो कि आप कान के पीछे, जो कि एरिया हम लोगों का हेयर फ्री रहता है ना, जो भी हेयर फ्री एरिया है मोस्ट लाइकली बिसाइड द पिन्ना और बिहाइंड द पिन्ना यू कैन यूज दैट, ठीक है। तो वहां पे अगर आप इसको चिपका दोगे तो ग्रेजुअली ये एब्जॉर्ब होगा और बहुत अच्छा इसका मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है। सिमिलरली टू एंटागनाइज द मस्करिनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स भी हम लोग इसको यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो कोई भी ऐसा पॉइजन है जिसका बहुत ज़्यादा मस्करिनिक इफेक्ट है तो वहाँ पे एंटी मस्करिनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको एज एन एंटीडोट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी का अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इसका ड्राइनेस ऑफ माउथ कराएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड टॉकिंग, है ना, तो मुंह सूखेगा और पेशेंट को बात करने में बहुत दिक्कत आएगा। ड्राई फ्लश्ड और हॉट स्किन देखने को मिलता है, फीवर भी हो सकता है एंड डिफिकल्टी इन मिक्टुरेशन, यूरिन पास करने में उसको दिक्कत होगा। सिमिलरली जो डायलेट हो जाएगा प्यूपिल, उसके कारण क्या होगा, फोटोफोबिया होगा, ब्लरिंग ऑफ नियर विजन एंड चूंकि हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो पेशेंट को पाल्पिटेशन भी होगा, हार्ट रेट उसको बढ़ा हुआ फील होगा। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्साइटमेंट, साइकोटिक बिहेवियर, एटेक्सिया, डिल्यूरियम भी करा सकता है हाई डोजेज में, ठीक है ना। हाई डोजेज में इट कैन कॉज एटेक्सिया एंड डिल्यूरियम, हेलुसिनेशंस भी हो सकता है। और फिर बाद में वेसोडाइलेशन के कारण उसका हाइपोटेंशन, वीक एंड रैपिड पल्स हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स विथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। थैंक यू।